जो आ गए हो तुम जो आ गए हो तुम तो प्रीलिम्स की कुछ बातें हों। वैसे भी कहाँ तुम रोज़ रोज़ पी क्यू सॉल्व करते हो। स्टूडेंट्स, शेर व शायरी इज़ माई हॉबी, सो आई reframed this share for you. What is the exactly real shairi, I will let you know in the end of this video. So first thing first, I am Abhishek Sharma. I have appeared for UPSC interview, that is personality test in 2025, whose result is still pending. I have written multiple UPSC mains and have appeared for the state interview also. So there was lot of demand from the student side regarding starting some series for the prelims. So I am starting this prelim series and I have named it Pass Prelims. Pass Prelims means prelims analysis and strategy series. Okay, let me tell you first ki how what this series is and how it is going to help you guys. Okay, and one promise let me make you at the onset ki if you follow this series, I guarantee you it will help you increase your score by 30 to 40 marks in prelims 2026 or whichever prelims you are going to sit in. It's my guarantee, but you will have to follow me. You have to follow this series till end. Okay, so let's get the detail of this series. First, this is free for all, no payment is to be made for it. Okay, in this series we will solve last 5 years, at least last 5 years PYQs from 2021 to 2025. Okay, क्योंकि most of the time students get rigid on themselves, they do not attempt the PYQs, and this is the biggest blunder you are going to make, I promise you. Okay, second thing, here we will not only solve these 5 years PYQ, but I will teach you how to solve. Everyone says ki okay, do PYQ, but how to do PYQs? I will teach you how to do PYQs. I will teach you all the tricks for attempting the prelims. There will be around 25 to 30 tricks. I will teach you all the tricks, and I will not only teach you, I will illustrate you through examples while solving these PYQs. Okay, and this is the thing that will help you increase 30 to 40 marks. That will help you to increase your score by 30 to 40 marks in prelims for sure. Okay, fourth is the conceptual clarity, because here I will not only solve these questions for you, I will also tell you the solutions and logic behind that solution. What is the concept behind that solution? That is the also thing that I will teach you. Okay, and fifth thing, it will help you in the revision. Kaise? What you can do, it will help you revision on daily basis, weekly basis, as well as during last days of your prelims, because it will be in short video formats, hardly 1 hour daily. Okay, so after lunch when you are free, you take some rest, so you can just play this video on your phone or iPad and put your earplugs and just listen what I am saying. So it will help you in revision also. Okay, regarding timing, daily at 8:30 p.m. other than today, daily at 8:30 p.m. I will upload this video on my YouTube channel. So please subscribe my YouTube channel, TCIIAS. Okay, but when I am committing you so many things, then it is very natural I want something in return from you. Okay, because there are no free lunches, so I am not asking for money definitely. So first thing I am asking you is your time, because time is money. I am asking you your time daily 50 to 60 minutes only. Okay, please watch this video till end, and please I'll bet कि it will definitely help you. अगर मज़ा ना आए ये वीडियो देखने के बाद तो अगली वीडियो मत देखना आप, ठीक है. Just give me 50 to 60 minutes.
Okay, I will build 25 to 30 videos only. Please watch one video daily. Okay, it will help you evolve your aptitude for prelims, because prelims is not the game of knowledge only. If you go by knowledge, no, you can no one, definitely no one, even the toppers cannot solve more than 30 to 40 questions just based on their knowledge. But you need to attempt 80 to 85 questions at least in prelims. Then how you will attempt rest 40 to 45 questions? This will be based on your aptitude, prelims aptitude, and that aptitude needs practice of PYQs with tricks. Tricks here means logical guesses, and how to make this logical guesses. This is exactly the thing I am going to teach you here, because this is no ratta process. All will be based on evidences, all will be based on logic. It's purely a game of logic and common sense, which is not that much common today. Okay, so please sit with your pen and paper, sit with your pen and paper. Okay, because I'll tell you some of the things, some of the tricks, some of the formulae that you need to write down in your copies. When I will say, just jot down those points. Okay, and most important thing that I'm telling you, use these tricks on UPSC PYQs, not on coaching papers. They may be helpful in coaching papers, may not be helpful in coaching papers. Coaching papers means test series, but they are 100% helpful in UPSC PYQs. Why? Because UPSC PYQ has some ideology behind it. That is the ideology that you should understand. That is a pattern that you should catch. Because when you say PYQ analyze, PYQ and analyze the PYQ, what you will analyze? You will decode that mentality of the paper setter, examiner who is setting the paper for UPSC prelims. That we will decode through this series. Okay, so these are the things that I want you, and you can subscribe my channel, YouTube channel, and you can also join my Telegram group, the link of which I will put at the end of this video towards in the comment section basically. And if you have any query, you can personally send me on Telegram also. Search on Telegram Sarma _ Abhishek _ 98. You can personally DM me any of the issues. Okay, so now we are moving towards solving the question paper in this past prelims series. So please be with me. मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट विल बी लाइक कि मैं वीडियो अभी जो जैसे क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपके पास 5 से 7 सेकंड होंगे सोचने के लिए. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड यू कैन थिंक कि अगर आप होते तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते. ठीक है, तो पेन एंड पेपर के साथ रेडी रहिएगा. अब शुरू करते हैं हम इसको. तो 5 सेकंड लीजिए, बल्कि वीडियो को पॉज कर लीजिए 5 सेकंड के लिए, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. तो जस्ट पॉज द वीडियो, टेक 5 सेकंड्स एंड थिंक कि आप कौन सा क्वेश्चन इसमें मार्क करते, अगर आप मार्क करते क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है, तो नाउ आई एम सॉल्विंग. द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ट्रू, you know it. Certain provisions in the Constitution of India give the central government the right to issue directions to RBI. Governor of RBI draws his powers from RBI Act. ये आपको पता होगा. ठीक है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं. अब देखो, certain provisions in the Constitution of India gives central government right to issue directions to RBI. आपने कभी सुना है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ा है, आपने पॉलिटी इतनी पढ़ी है, कहीं देखा आपने कि RBI के रिगार्डिंग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ? नो, इट इज़ नॉट मैंशनड. तो ये स्टेटमेंट गलत है. और बताता हूँ मैं आपको ट्रिक कि आप क्या ट्रिक इसमें यूज़ कर सकते थे. लिख लो ट्रिक. ठीक है, ट्रिक कैसे लिखनी है वो बता देता हूँ. कॉपी लो, लीव 3 एम्प्टी पेजेस फॉर पॉजिटिव रूल्स, 3 एम्प्टी पेजेस फॉर नेगेटिव रूल्स, ब्लैंक पेजेस. ठीक है, जो नेगेटिव रूल में ट्रिक नंबर 1 लिख लो. ट्रिक नंबर 1, राइट. UPSC changes one word to make a statement incorrect.
UPSC changes one word to make a statement incorrect. So read question very carefully. And wherever it is mentioning as per the Constitution of India, लिख लो as per the Constitution of India. Please beware. Get alert. Mostly such statement will be incorrect. Wherever it is saying as per the Constitution of India, in most cases such statement will be incorrect. So this is a trick. Okay, so यहाँ पे certain provisions in the Constitution of India, अगर आप ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे सेकंड वाला गलत हो जाएगा. अगर आप फर्स्ट और थर्ड भी ज़्यादा नहीं पता है ना, पहले वो तो पता होगा, इजी क्वेश्चन है, तो अगर सेकंड वाला भी सिर्फ आप काट देंगे ट्रिक लगा के, तो यू विल गेट द आंसर. दैट इज द आंसर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन you can pause it and think what you would have marked. I am solving this question. With reference to casual workers employed in India, consider the following statement. All casual workers are entitled to employees provident fund. All casual workers are entitled to regular working hours and overtime payment. Government can by notification specify that establishment on shall pay wages only through bank account. देखो ट्रिक नंबर 2 आपने ये लिखते भी होंगे, नेगेटिव साइड में ट्रिक लिखनी है. राइट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर मोस्टली इनकरेक्ट. ये आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस स्टेटमेंट आप बहुत कम लोगों को पता होगा, फिर आपको मज़ा आ जाएगा ये जान के. देखो ये आपको और जगह भी ट्रिक पड़ेगी. एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर मोस्टली इनकरेक्ट, but here exceptions of this extreme statement. What are the exceptions? In polity questions you need to know that this can be an exception. This can be an exception in polity questions. In law, in rule, this can be an exception. और आपको इसी क्वेश्चन में दिख जाएगा ये कैसे एक्सेप्शन हो सकता है. थर्ड, कॉमन सेंस. देखो एक बात मैं यहाँ पे बहुत क्लियर बता दूँ, प्लीज़ इसको बोल्ड में लिख लीजिएगा कि फर्स्ट कम्स योर नॉलेज एंड कॉमन सेंस, उसके बाद आती हैं ट्रिक्स. ठीक है, ये चीज़ लिख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से. अगर कोई क्वेश्चन आपके नॉलेज के हिसाब से, मान लीजिए किसी का आंसर ए है बट ट्रिक्स के हिसाब से सी है, प्लीज़ मार्क ए. भूल जाओ ट्रिक्स को उस टाइम. अगर आपकी नॉलेज कह रही है कि ए है और ट्रिक कह रही है सी है, गो विद द ए. ठीक है, अब देखो इसमें देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट पहले देखते हैं. द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री. देखो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है, ये कितनी छोटी सी बात है. गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के ये बात कह सकती है कि जो भी वेजेस पे किए जाएंगे वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पे किए जाएंगे. यस, गवर्नमेंट कैन डू. गवर्नमेंट इज सोवरेन, गवर्नमेंट कर सकती है. थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, अब कह रहा है ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज. ऑल वर्कर्स, कौन से वर्कर्स? कैजुअल वर्कर्स. देखो अब यहाँ पे समझो, सारे कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं वो इसके लिए एंटाइटल्ड नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि प्रोविडेंट फंड है ना, जो पीएफ होता है, ये लॉज के रिगार्डिंग है, ये लॉज के अंडर होता है. वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम पेमेंट, ये सारे लॉज के अंडर है. तो यहाँ पे ऑल वाला जो आपका रूल है ना, ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन हो जाएगा. कैसे? पहले वाले में देखो, पीएफ जो होता है ना, पीएफ एक सर्टेन सैलरी के ऊपर ही कटता है, उससे नीचे ये चॉइस होती है कि कटवाना है नहीं कटवाना है. सैलरी का थ्रेशोल्ड है मान लो 15,000, उसके ऊपर ही पीएफ मैंडेटरी होता है. तो ऑल नहीं होगा, तो ये वाला हो जाएगा स्टेटमेंट आपका गलत. ठीक है, समझ आ गया कैसे इन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे ट्रिक के अंदर भी उसके एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए. अब देखो, तो पहला वाला हो गया गलत, तो आंसर आपका अपने आप आ जाएगा. लेकिन सेकंड वाले का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखो सेकंड वाला ठीक क्यों है, ऑल तो इसमें भी है, फिर ये ठीक कैसे हो गया? ये ठीक ऐसे हो गया भाई, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब समझो, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू रेगुलर वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम पेमेंट. यार सोच के देखो, अगर कैजुअल वर्कर भी हैं तो क्या उनके लिए कोई वर्किंग आवर्स लिमिटेड नहीं होंगे? क्या उनके लिए ओवर टाइम पेमेंट मैंडेटरी नहीं होगा? पीएफ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर किसी की मान लो 10,000 सैलरी, उसमें से पीएफ काट लोगे तो कितना ही सा बचेगा उसके लिए. 2,000 आपने पीएफ काट लिया, मान लो 8,000 बचा, कैसे घर चलाएगा? तो एक थ्रेश होल्ड है कि उसके ऊपर ही पीएफ कटेगा,
उसके नीचे मैंडेटरी नहीं है पीएफ कटना, वो चॉइस हो जाती है उसके अंडर। लेकिन वर्किंग आवर्स तो यार फिक्स्ड है ना, अगर उससे ज़्यादा काम करवाओ किसी को तो ओवर टाइम पेमेंट करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब नहीं अगर उसमें भी सैलरी कहा जाएगा क्या कि जिसकी मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स क्या उस पर ही इंप्लीमेंट होंगे, जिसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी, जिसकी 15,000 मान लो सैलरी हो, उससे क्या आप 18 घंटे काम करवा लोगे? इलीगल नहीं हो जाएगा ये? यूज़ कॉमन सेंस हियर। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पढ़ लीजिए रोक के। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं सॉल्व करता हूँ। विच अमंग दी फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेप्स वुड बी मोस्टली टेकन? इकोनॉमिक रिसेशन मीन्स डिमांड हैज़ गॉन डाउन, सो वॉट यू हैव टू डू? यू हैव टू इंक्रीज द डिमांड, टू इंक्रीज द डिमांड। अब डिमांड को इंक्रीज कैसे करोगे? कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। कट इन टैक्स रेट तो ठीक है कि टैक्स कट जब होगा तो सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अकम्पनीड बाई इंटरेस्ट रेट, भाई अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो सेविंग्स कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा डिमांड डाउन चली जाएगी, लेकिन डिमांड को इंक्रीज़ करना है तो ये गलत हो गया। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे, जब एक्सपेंडिचर करेगी मतलब रोड बनाने शुरू कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को बेजेस मिलेंगे, बेजेस मिलेगा पैसे आएगा, पैसा मिलेगा डिमांड बढ़ेगी, ये ठीक है। अगले वाले देख लेते हैं ये कैसे गलत है। इंक्रीज इन टैक्स रेट, ये तो गलत हो गया। टैक्स रेट अगर बढ़ाओगे सेविंग्स कम हो जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी, यहाँ पे हमारी रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर पब्लिक प्रोजेक्ट गलत हो गया। तो इसका बी वाला स्टेटमेंट ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। फोर्थ वाले को देखते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, बाकी चीज़ों को मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। कह रहा है बाकी चीज़ों को अनचेंज रखा जाए तो मार्केट डिमांड किसी गुड की कब इंक्रीज होगी? ठीक है। व्हेन प्राइजेस ऑफ ए सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, देखो इसको समझो। अगर कोई गुड है मेरा टी की सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी, कह रहा है प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट इंक्रीज। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में तो टी की डिमांड पे क्या होगा? टी की डिमांड बढ़ेगी। लोग कहेंगे भाई कॉफ़ी बहुत महंगी होगी, चाय से काम चला लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट, ये कट जाता है। प्राइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट गुड है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। देखो टी है, टी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? शुगर, क्योंकि शुगर के बिना तो चाय बन नहीं सकती। तो कह रहा है अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है उससे कॉम्प्लीमेंट का शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो टी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी घटेगी? घट जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि किससे बढ़ेगी, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया अपना। तो सेकंड वाला गया कट, ये गया सेकंड वाला कट। अब फोर्थ वाले पे जाते हैं। इट्स प्राइस फॉल्स, तो आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर डाउन जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है? जनरली इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाला ठीक है। तो फोर्थ वाला तो ठीक है, तो फोर्थ वाला ठीक है, ठीक है। अभी भी नहीं बन रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। अब समझो इस बात को ध्यान से। कोई भी इन्फीरियर गुड है, ठीक है, जो आप इसलिए खरीदें कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है अच्छी क्वालिटी का खरीदने के लिए, और आपकी सैलरी बढ़ गई तो क्या, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? उस चीज़ की उसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। अभी कोई चीज़ आप मान लीजिए ऐसे कह लेते हैं कि अभी आप विशाल मेगा मार्ट से ख़रीद रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि आपकी सैलरी कम है, सेविंग्स कम है। कल को आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या विशाल मेगा मार्ट से खरीदेंगे? नहीं, आप जाएंगे लिवाइस के शोरूम में अपनी जीन्स खरीदने। तो इन्फीरियर जो गुड है ना, इन्फीरियर जो गुड है उसकी डिमांड घट जाएगी, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव कर जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इन्फीरियर गुड है कैरोसिन, ठीक है। कैरोसिन आदमी कब खरीदता है? गरीब आदमी खरीदता है, उसके पास पैसा कम है, उसका पैसा हो जाएगा तो वह एलपीजी सिलेंडर पर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों खरीदेगा कैरोसिन? ठीक है। तो उसका जब इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये वाला वैकेंसी 1 और 4, दिस इज़ द आंसर। ठीक है। तो ऐसे मैं आपको कंसेप्ट भी समझाता हुआ चलूँगा सारे सब्जेक्ट्स के। अब आ जाते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे। आप रोक के पॉज करके ठीक है, सोचिएगा, मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। भाई क्या होता है लोकल बोर्ड? सुना है कभी लोकल बोर्ड है और वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हमारी रेगुलेट कर रहा है? नहीं, रेगुलेशन का काम है आरबीआई का।
RBI regulates the banks, not the local board. So trick है पॉजिटिव साइड में. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड. सो सच वेग वर्ड्स, ये बेसिकली नेगेटिव साइड में लिखिएगा, नेगेटिव साइड की ट्रिक है. वेग वर्ड्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयर इज नथिंग लाइक लोकल बोर्ड. कैंसिल यहाँ से सीधे, फर्स्ट वाला कैंसिल, आंसर आ गया 2 और 3. ये नहीं भी पता है तो भी आपका आंसर यहाँ से आ गया, क्योंकि दो चीज़ें हैं, क्योंकि रेगुलेशन वाला काम RBI का होता है, ठीक है. सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेशन इज अ वर्क ऑफ RBI. सेकंड थिंग, देयर इज नथिंग लाइक लोकल बोर्ड. स्पेसिफिक अगर कोई बॉडी होती है उसका नाम दिया होता तो सोचा जा सकता था, लेकिन वो नाम दिया नहीं है. 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम. 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये है 6 क्वेश्चन है बॉन्ड यील्ड के बारे में, ठीक है. इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस, इंक्रीज डिक्रीज की बातें कर रहा है. करें इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है. ये बताओ कि बॉन्ड यील्ड, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड है वो किससे इन्फ्लुएंस हो सकती है. तो बॉन्ड यील्ड पहले आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, ठीक है. बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइजेस, ये आपको पता होना चाहिए. बॉन्ड के प्राइसेस डाउन जाएंगे, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी, और बॉन्ड के प्राइसेस अगर ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगी, ठीक है. क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो निकलती है वो निकलती है हमारे इंटरेस्ट, कूपन रेट जो होता है, कूपन रेट अपॉन बॉन्ड प्राइस, ठीक है. तो कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, कितना % इंटरेस्ट मिलता है, ये तो फिक्स रहता है बॉन्ड पे. तो जो वेरी करती है बॉन्ड यील्ड वो करती है बॉन्ड प्राइस की वजह से, ठीक है. अब देखो, अगर US फेडरल रिजर्व है वो अपने एक्शन ले रहा है. अगर मान लो US फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया उसने बढ़ा के कर दिया मान लो 20%, और इंडिया के जो बॉन्ड हैं उन पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है सपोज 10%. तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से पैसा निकाल लेंगे बॉन्ड से, और वो कहाँ भाग जाएंगे, US में अपने इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है. तो जब यहाँ से डिमांड घट जाएगी हमारे बॉन्ड्स की डिमांड घट जाएगी, मतलब उन्होंने हमारे बॉन्ड्स की डिमांड घटा दी. जब डिमांड घटेगी तो प्राइस इंपैक्ट होंगे, और प्राइस इंपैक्ट होंगे तो बॉन्ड यील्ड इंपैक्ट होगी. तो ये सही है. ऐसे ही RBI, जब RBI अपनी इंटरेस्ट रेट चेंज करेगा, अगर मान लो RBI ने अपनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिए और US में जो इंटरेस्ट रेट है उससे ज़्यादा कर दिया, और भी कंट्रीज़ उससे ज़्यादा कर दिया, तो वहाँ के इन्वेस्टर्स आएंगे इंडिया के, आके बॉन्ड खरीदेंगे, फिर से हमारे बॉन्ड प्राइजेस को इम्पैक्ट करेंगे और हमारी बॉन्ड यील्ड इम्पैक्ट हो जाएगी. और इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की तो बात ही है, क्योंकि इनमें अगर चेंज होगा तो बॉन्ड यील्ड होगा ही होगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड इज़ ऑल अबाउट द इंटरेस्ट रेट, ठीक है. तो इसमें तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे. अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, अगर मान लो इन्फ्लेशन आपका 20% पहुँच गया, और बॉन्ड पे आपको जो कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो फिर तो 10% का घाटा होगा. क्यों खरीदेगा तुम्हारे बॉन्ड, कोई बेच के भाग जाएगा वो तो यहाँ से बॉन्ड, ठीक है. तो ये तीनों ठीक, इसमें 1 2 3 सारे स्टेटमेंट ठीक हैं ये, ठीक है. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. टाइम क्यों हो रहा है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सा FDI है, ठीक है. देखो इस चीज़ को, जो आता है उनसे ही सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस. देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया, आपको पता है कि FDI क्या होता है. FDI वो होता है कि इन्वेस्टमेंट आया फॉरेन से और 10% से ज़्यादा स्टेक उसने ले लिया, वो होता है FDI. ये लिमिट है, पता है आपको FDI मतलब लिमिट क्या, थ्रेशोल्ड है. इससे नीचे FPI, उससे ऊपर FDI. तो वो कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन क्या, 10%. तो यस, दिस इज FDI, ठीक है. तो सेकंड वाला ठीक है, जिसमें सेकंड नहीं है उसको काटो. अब A और C में से हमें चूज़ करना है कौन सा ठीक है. तो फोर्थ वाला देखो, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, NRI हैं हमारे, उन्होंने इंडिया में डिपॉजिट कर दिया है अपना कुछ मनी, क्या वो FDI माना जाएगा? नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि दिस इज बैंक डिपॉजिट्स, दिस इज बैंक डिपॉजिट, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट ब्रदर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट तो कंपनी में डाला जाता है, पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है. यू गेट द शेयर्स, और वो शेयर भी कितने हैं, 10% वाला याद रखना, ठीक है. तो आपने बैंक अकाउंट में, यू जस्ट केम एंड डिपॉजिट योर मनी इन अ बैंक अकाउंट, दैट इज अ डिपॉजिट. यू कैन टेक योर मनी एनी टाइम, दैट्स नॉट द इन्वेस्टमेंट.
दैट इज डिपॉजिट, सो दैट इज नॉट FDI। फोर्थ वाला जिसमें है काट दो। आंसर इज 1, 2 एंड 3। अगर आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स नहीं पता तो भी हो जाएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स GDR नहीं पता तो भी हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, devaluation, you know what is devaluation? Devaluation means the value of your currency, that is rupee, goes down with respect to other currency, say dollar, that is devaluation। तो कह रहा है कि अगर devaluation होगा, if there is devaluation of a currency, then what will be its necessary impact? Necessarily what will happen? Okay, see, improves the competitiveness of the domestic exports in the foreign markets. Yes, how? See, when your rupee has gone down in comparison to dollar, then in $1 people can purchase more good from India. Okay, so our exports will increase, but there is chance to increase our export at least, because अगर वो पहले $2 में एक शर्ट खरीदते थे इंडिया में जिसकी कीमत थी 160 रुपये, कब? जब $1 वॉज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब हमारे रुपये की वैल्यू गिर गई, अब हमारा रुपये हो गया $1 में $1 इक्वल टू ₹160। तो अब तो एक ही रुपये में उस शर्ट को खरीद लेगा वो, $2 में अब तो 2 शर्ट खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ जाएगी हमारे उसकी, तो कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेज। सेकेंड इज इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू of our domestic currency. No, it is not increase in foreign value, it is decrease of foreign value। वैल्यू गिर गई हमारे रुपीज़ की इन कंपेरिजन टू डॉलर, तो गलत हो गया। तो सेकंड वाला गलत है, यहाँ पे काटो सेकंड वाला जहाँ जहाँ गलत है, पहला वाला ठीक है, पहला वाला ठीक है। लो हो गया, इसका फर्स्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ बरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बरी? बिकॉज ऑफ द ब्लैक मनी। व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट जो उसका होगा जिसके वजह से गवर्नमेंट बरी है? गवर्नमेंट इज बरीइंग, फर्स्ट देखते हैं, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। वाई गवर्नमेंट विल बरी अबाउट इट? If you are using your black money, not you, means anyone is using his or her black money and using for purchase of real estate, for luxury, suppose luxury cars, then yeah, you will pay tax on it. Government will get money in form of tax. It is good for government कि आपके पास black money था, unaccounted money था, टैक्स भरते नहीं थे, अब टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए, अच्छा है, गवर्नमेंट will bury, no, not that much bury। Investment इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीशियस गोल्ड, अगेन जब परचेज करोगे स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, तो अगेन यू विल पे टैक्स, बाय गवर्नमेंट विल वरी, गवर्नमेंट विल नॉट बी वरी। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, लोग गवर्नमेंट की पार्टी को आप दे रहे हो डोनेशन, गवर्नमेंट क्यों वरी करेगी? नहीं करेगी गवर्नमेंट वरी। ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, भाई रीजनलिज्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है ब्लैक मनी से, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो क्या बचा? लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, यस इज लॉस ऑफ रेवेन्यू। व्हाई इट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू? व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी इज unaccounted money. When it is unaccounted money, you are not paying any tax on that money, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं आपके पास पैसा है। जब को पता नहीं है गवर्नमेंट के पास, जब गवर्नमेंट को पता नहीं आपके पास पैसा है, तो टैक्स कैसे लगाएगी आपके उस पैसे पे? सो यू आर द मेन वरी ऑफ गवर्नमेंट इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट इज लूजिंग द रेवेन्यू बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मनी, दिस इज द मेन रीजन। सो दिस इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? इन्फ्लेशनरी मीन्स which of the following will create inflation? Inflation means rise in prices of general commodities over a time, ठीक है। किस इनमें से क्या कारण होगा जिसके वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा मार्केट में, ये आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज है गवर्नमेंट उसको चुका रही है, वापस कर रही है। भाई गवर्नमेंट जब उसको वापस कर रही है तो फिर इन्फ्लेशन क्यों होगा? तो डिसइन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट लोन लेती है उसके वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हो जाते हैं, उसके वजह से इन्फ्लेशन होता है, सॉरी उसके वजह से इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स रहती हैं। जब गवर्नमेंट पे बैक कर रही है उसके वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगा।
बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनेंस अ बजट, ठीक है, बोरो कर रही है, इसके वजह से हो सकता है इन्फ्लेशन हो, बोरिंग फ्रॉम द मार्केट हो सकता है इसके वजह से हो, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किसके वजह से होगा, वो होगा क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, ध्यान से सुनिएगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। वाई देखो समझो इस बात को, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, जब आप न्यू मनी को क्रिएट करेंगे, नई करेंसी को आप छापेंगे तो क्या होगा, मार्केट में रुपीज़ बढ़ जाएगा, टू मच मनी विल बी देयर, लेकिन जो प्रोडक्शन है आपका जीडीपी है वो तो उतने की उतनी ही रही, नो चेंज, जीरो चेंज। सो व्हाट विल हैपन, मोर एंड मोर मनी विल चेज less number of goods, and what happens when more and more money is chasing less number of goods, it is creates inflation, basic economics. So this is the right answer, D1, D. Okay, now comes on the 11th one, okay, see, money multiplier in an economy increases with which one of the following. So you should know what is money multiplier. In simple language I will say, it is about banks creating the money, it is about banks creating the money. How banks create the money, banks creating money, you know, banks also create money. How banks create the money, suppose RBI issued ₹100, okay, that ₹100 goes to the public ने क्या किया, डिपॉजिट ₹50 विद द बैंक, डिपॉजिट 50 विद द बैंक, बैंक के पास कितना रुपया है, 50, बैंक ने इस 50 रुपये में से 10 रुपये रोक लिया, 40 रुपये वापस लैंड कर दिया, ठीक है, 40 रुपये बैंक ने लैंड कर दिया, ठीक है। अब इस 40 रुपये में से 10 रुपये किसी ने खर्च कर लिया और 30 रुपये उसने बैंक में फिर से डिपॉजिट कर दिए ले जाके, ठीक है। तो बैंक के पास पहले कितने 50 रुपये थे, अब कितने 30, 80 रुपये उसकी बुक्स में है, उसमें से उसने फिर से लिया 70 रुपये लैंड कर दिया, किसी ने इसमें से 20 रुपये खर्च कर लिए, 50 रुपये फिर से बैंक को दे दिए, अब बैंक के बुक में 50 रुपये और ऐड हो गया तो कितना हो गया, 80, 50, 130, ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो RBI ने तो 100 रुपये दिए थे, बैंक ने उसको 100 कितना कर दिया, 50, 80, 50, 130 कर दिया। दिस इज़ मल्टीप्लाई, और बैंक हैज़ मल्टीप्लाइड द मनी। ये कब होगा, जब लोग बार बार बैंक आएंगे, बैंक में पैसा डालेंगे, तभी तो होगा। बैंक में पैसे डालो, बैंक से पैसे निकालो, लोन लो, खर्च करो, फिर से वापस करो, तभी तो मनी मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखो इसका सीधा आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट, कि बार बार बैंक जाओ, बैंकिंग हैबिट आपकी इंक्रीज होगी, जमा करो, निकालो, लोन लो, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी देखते हैं कि बाकी कैसे कैंसिल हो सकते थे। इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, देखो कह रहा है कि इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR, इट्स सम परसेंटेज दैट यू नीड टू कीप विद द RBI, बैंक नीड टू कीप विद द RBI। अगर 100 रुपये बैंक के पास हैं, उसमें से 10% तुम्हारा CRR है, तो बैंक के पास तो 90 रुपये बचे ना, इस 10 का तो बैंक यूज़ कर ही नहीं सकती, तो RBI के पास रखें। अब तुम कह रहे हो इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा के तुमने 20 कर दिया, तो बैंक के पास तो 80 रुपये ही रह गए। फिर ये उसमें से अब यहाँ पे स्कोप था कि 90 रुपये को यूज़ कर सकती थी बैंक लोगों को देने के लिए, यहाँ पे 80 रुपये ही बचे, तो ये तो घट गया ना, मनी मल्टीप्लाई घट जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे इंक्रीज द SLR वो होता है जो बैंक के पास रखा हुआ होता है परसेंटेज। अब बैंक तो SLR को भी बैंक यूज़ कर नहीं सकती लैंडिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए। अगर मान लो SLR 20% है, तो बैंक के पास कितने रुपये बचे, 80 रुपये बचे। अब आप कह रहे हो इसको इंक्रीज़ करके 40 कर दो, मान लो, तो 60 रुपये बचे ना, फिर से मनी मल्टीप्लाई घट जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन सिर्फ आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है। मान लो आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, 150 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, लेकिन वो लोग पैसा डाल ही नहीं रहे हैं अपने बैंक में, वो अपने घर में रख रहे हैं कैश। तो सिर्फ पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से ही आपकी जो मनी मल्टीप्लायर है वो नहीं बढ़ेगा। यू शुड डिपॉजिट दैट मनी इन द बैंक, देन ओनली मनी मल्टीप्लायर विल टेक इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो डी वाला भी कट जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इस क्वेश्चन को देखिए। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यू नो इन्फ्लेशन इज ऑफ टू काइंड। ओके, डिमांड पुल, जब डिमांड बढ़ जाए किसी चीज़ की तो उसके वजह से इन्फ्लेशन हो, और दूसरा है कॉस्ट पुश, जब
उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन की बढ़ जाए, ठीक है, उसके वजह से इन्फ्लेशन हो। अब देखो कह रहा है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड। देखते हैं, देखो हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें पता ना हो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी वैसे पता होगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिजिकल स्टिमुलस, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कि कैसे आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, वो बताओ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड कम होगी या घटेगी, मतलब कम होगी या बढ़ेगी? इट विल गो डाउन, डिमांड विल गो डाउन, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये तो कट जाएगा। 5वें वाला गलत है, ये 5th वाला, तो 5th वाला यहाँ से काटो, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हैं कि लाइक फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी, फिजिकल स्टिमुलस लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके क्या होगा, तो पैसा मार्केट में आएगा, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोगों को इनकम बढ़ेगी, उसके वजह से आपका जो क्या कहते हैं, हाँ डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसकी वजह से, तो ये ठीक हो जाएगा, ये वाला भी ठीक हो जाएगा। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी सेम ही है कि गवर्नमेंट जो मनी है उसको ईजी मनी कर रही है और ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, फिर से वही होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। हाइयर परचेजिंग पावर जब होगी लोगों के पास, लाइक आज आपके पास 100 रुपये खर्च करने की औकात है, कल 200 है, तो जब 200 रुपये होंगे तो सिंपल सी बात है डिमांड बढ़ेगी ना चीज़ों की। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग बेज कि भाई आपके जो बेज है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर आपका इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया, अभी आपकी सैलरी मान लो 100 रुपये है, इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया, आपकी सैलरी उन्होंने 110 कर दी, तो नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा, 0 आपकी सैलरी पे। अब तो जहाँ पे थे वहीं पर रहेगा ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 को इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे करके चीज़ें हो सकती हैं। देखो एक ट्रिक लिख लो नेगेटिव साइड में, ट्रिक लिख लो नेगेटिव साइड में, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली इनकरेक्ट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली इनकरेक्ट especially when 2 or more organizations are given in single statement, in single statement। नेगेटिव साइड में लिख लो ये ट्रिक, नेगेटिव साइड में लिखनी है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्टली इनकरेक्ट स्पेशली व्हेन 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस आर गिवन इन सिंगल स्टेटमेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बार बार, अब देखो 3 अगर स्टेटमेंट दिए हुए तो उसे एक आध स्टेटमेंट तो गलत करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट सही बना देगा, फिर क्या ही मतलब हुआ क्वेश्चन पेपर सेट करने का। सो हाउ दे विल मेक द क्वेश्चन इनकरेक्ट, या तो एक वर्ड चेंज कर देगा जैसे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया, या फिर 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल रहा है, किसी का नाम गलत कर देगा वो, और जब एक स्टेटमेंट में 3-4 डाल रहा है तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि उसको किसी न किसी एक को तो गलत नाम मेंशन कर ही देगा स्टेटमेंट को इनकरेक्ट करवाने के लिए। तो ये क्वेश्चन देखो, रिटेल इन्वेस्टर्स through demat accounts can invest in treasury bills and government of India debt bonds in primary market, yes they can, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था, उस समय गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी RBI रिटेल डायरेक्ट, ओके। अंडर दिस स्कीम यू कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द ट्रेजरी बिल्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स थ्रू योर डीमेट अकाउंट, ये सही था, तो फर्स्ट वाला इज करेक्ट, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट नहीं है वो तो काट ही दो पहले, अगर इतना भी कर देते तो भी 50-50 पे आप चांस लेने, मतलब आप चांस लेते ही लेते, 50-50% वालों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर एक ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर देना तो भी उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वो बताऊंगा मैं लास्ट में कैसे। अब देखो ये थर्ड वाला देखो, पहली बार तो यहाँ से हो जाएगा, अगर ये वाला नहीं भी आता फर्स्ट वाला तो भी मैं बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट वाला आपको नहीं भी पता होता तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे, थर्ड स्टेटमेंट देखो, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 आ गए यहाँ पर, 2 एंड मैंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए तो उसको गलत कर देना, क्योंकि ये RBI के द्वारा नहीं होता है, ये होता है BSE प्लस NSE, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड वाला आप अगर काट देंगे तो भी आप यहाँ पे पहुँच जाते, और ये सेकंड वाला ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज़ द आंसर हियर, ठीक है। 50-50 वाले पे आपको चांस लेना ही लेना है, ठीक है। फिर आते हैं वाटर क्रेडिट,
वाटर क्रेडिट विद रेफरेंस टू द वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो अब एक ट्रिक लिख लो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, ट्रिक लिख लो पॉजिटिव साइड में। ट्रिक इज डिकोड द वर्ड, डिकोड द वर्ड using common sense, using common sense, decode the word using common sense. Using such common sense you can at least mark 5 to 10 questions correct, 5 to 10 questions correct. I am telling you on the basis of analysis of 2025 paper also, especially the science and tech portion. जब हम solve करेंगे I will tell you how you could solve at least 5 to 10 questions correct using common sense. With reference to water credit, see water credit, credit you know loan, finance, something like that for water. Someone is there who is giving loan for making water accessible. Okay, now it puts microfinance tools to work in the water and sanitation. ठीक जा रहा है, माइक्रोफाइनेंस की बात हो रही है तो क्रेडिट की बात तो थी और वाटर सैनिटेशन की बात कर रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक। अभी आपको क्या ट्रिक बताई थी, whenever 2 or more organizations are given in a single statement most probably that statement will be incorrect। काट दो भाई इसको, अगर 2 ही काट देते आप ना ये वाली ट्रिक लगा के तो भी आंसर आपका आ जाता, तो भी आंसर आपका आ जाता। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि योर कॉमन सेंस एंड दीज ट्रिक्स विच आर बैक्ड बाय लॉजिक will help you increase your score by at least 30 to 40 marks, at least 30 to 40 marks। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये आपको पता है एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है 11th क्लास की बुक से। आरबीआई को लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर बैंक फेल होने वाली होती है तो आरबीआई कम्स टू द हेल्प, कम टू द रेस्क्यू ऑफ दोज बैंक्स। इफ बैंक्स आर गोइंग टू फेल आरबीआई विल कम टू रेस्क्यू ऑफ देम। तो lending to trade and industry, what is no, गलत। lending to bank, providing liquidity to the banks having a temporary crisis, yes। lending to the government, no। ठीक है, तो only second one is correct। 16 question, again use common sense, use common sense here, use common sense। how R2 code of practices, R2 code of practices constitutes a tool available for the promotion and adoption of R2। आपने सुना ना कि R ऐसे करके लिखा हुआ भी देखा होगा, ऐसे लिखते हैं ना R3। ये कहाँ पे देखा है, रीयूजेबल आइटम्स, रीयूजेबल आइटम्स, कमोडिटीज। ओके, इन पे तो देखा होगा ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अब तो R4 और R5 भी आ गया है, हमारी सर्कुलर इकोनॉमी जो आई है, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या क्या बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफर्बिश। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो ये किस में आता है, कम्युनिटी में आता है। अब इसको सुनिए, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडोप्शन ऑफ किस चीज़ का, इन्वायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग वाली बात आ गई, इसकी बात करते हैं, ठीक है। बाकी भी आप कैंसिल कर सकते हो, इकोलॉजिकली मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स नॉट दैट कम्युनिटी यार, ये गलत मतलब स्टेटमेंट है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, नो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में नहीं होता। अगर सिर्फ यूज़ करने की बात कर देते हो आप एग्रीकल्चर कम्युनिटीज तो भी मान लेते। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, नो, इट्स अबाउट द कम्युनिटी, दीज आर नॉट कम्युनिटीज, दिस इज द कम्युनिटी दैट वी यूज़। ओके, तो ये इसके साथ में जाएगा, ऐसे आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। अब देखो 17 क्वेश्चन, देयर why is there a concern about copper smelting plants, copper smelting plants। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला याद है ना आपको कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज होगा, और यहाँ पे दो ट्रिक यूज होंगी, देखो कैसे। why is there a concern about copper smelting plants, they may release lethal quantities of carbon monoxide into environment, copper slag can cause leaching of some heavy metals into environment, they may release sulfur dioxide। देखो लिखो ट्रिक पॉजिटिव साइड में, wherever using loose language like may, can, might be, some। wherever using loose language like may, can, might be, some,
मोस्टली करेक्ट, मोस्टली करेक्ट। एक्सेप्शन आपको पता ही है, कॉमन सेंस वाली बात, ठीक है, नॉलेज वाली बात, कोई नॉलेज जहाँ पे आएगी ऑल ट्रिक्स विल गो टू हेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो देर इज वाई देर इज कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, दे मे यूज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन। देखो पहले सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखो, द कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, इट इज़ नॉट सेइंग मोस्टली हैवी मेटल्स। अगर मोस्टली बोलता तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो सकता था, तो ये जानबूझ के आपके स्टेटमेंट को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सम कह के, कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स, ट्रू। दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, मे रिलीज, नॉट नेसेसरी रिलीज, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट, यस ट्रू। सेकंड एंड थर्ड तो होगा ही होगा, जिसमें सेकंड थर्ड नहीं है उसको दो काट, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे मे तो है, इट इज़ यूजिंग लूज लैंग्वेज बट इट इज़ also accompanied by the extreme statement, they may release lethal quantities of carbon monoxide, it is not saying they may release some quantities। अगर कहता they may release some quantities of carbon dioxide into environment तो सही हो जाता है, they are saying they may release lethal quantities, तो ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा भी लॉजिक लग सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा गलत। 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 2 and 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि फर्नेस ऑयल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चलो मान लेते हैं अगर आपको फर्नेस ऑयल नहीं पता है तो सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, सब अगेन सम इंडस्ट्रीज, तो ये ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट। इट तो सेकंड वाला तो जिसमें नहीं है उसको काट दो, ठीक है। 1/3 पे हमारी बात पहुंच जाती तो भी हम इसको अटैम्प्ट करते हैं, अगर 1/3 अगर एक स्टेटमेंट भी काट दे रहे हैं ना तो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट भी अगर काट पा रहे हैं तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, छोड़ना ही नहीं है, उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। ये बात याद रखना, अगर आपको यहाँ पे पता है तो बहुत अच्छी बात है। विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, देखो फर्नेस ऑयल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्नेस ऑयल एक ब्लैक ऑयल होता है, ब्लैक कलर का ऑयल होता है और बड़ा बीसियस सा होता है, और ये निकलता है रिफाइनरीज से। कहाँ से निकलता है? रिफाइनरीज से। हमारे पेट्रोलियम डीजल भी वहीं से निकलता है और ये भी वहीं से निकलता है, ठीक है। काला काला होता है, गाढ़ा सा तेल ये, ठीक है। तो इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, तो ये ठीक हो जाएगा अगर आपको ये बात पता है। इट कैन कॉज सल्फर इमिशंस इनटू एनवायरनमेंट। अब एक बात को समझो, एक बात को समझो, पहले मैं इसका यूज़ बता देता हूँ। जो इसका जो अपना फर्नेस ऑयल है ये हमारा फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है हीटिंग पर्पस के लिए, मतलब इसको जलाया जाता है, ठीक है, हमारी बॉयलर्स वगैरह को गर्म करने के लिए। जो फैक्ट्री में बॉयलर्स वगैरह होते हैं उनको गर्म करने के लिए। अब एक बात याद रखना कि रिफाइनरीज से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, मोस्ट ऑफ देम विच आर वंट, रिफाइनरीज से निकले हुए मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर आप उनको बर्न करोगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, सल्फर इमिशंस तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, चाहे हमारा जैसे कि पेट्रोल हो मतलब डीजल हो, ठीक है, तो वो भी करते हैं तो ये भी करेगा, ठीक है। तो इसके ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ये वाला इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ा। अब देखो ये कॉमन सेंस, यूज़ कॉमन सेंस which is not that common, use bird decoding technique। क्या बोल रहा है ये? what is ब्लू कार्बन? चलो आज तो आपको पता होगा भाई, ब्लू कार्बन ग्रीन कार्बन सब आपको पता है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं होगा शायद 2021 में नई चीज़ होगी, करंट अफेयर से क्वेश्चन होगा उस टाइम। अगर नहीं पता है तो उसको डिकोड तो कर सकते हो ना, बट ब्लू कार्बन somewhere related to something blue। Now check the option. Carbon captured by oceans, coastal ecosystem, ocean is blue, this is the answer। बाकी में देख लो sequestered in forests are green, that can be green carbon, ठीक है। what is green carbon? जिसको प्रोडक्शन में इमिशंस ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट ना हो, कार्बन इमिशंस ना हो या बहुत कम हो, वो होता है ग्रीन कार्बन। ब्लू कार्बन इज द कार्बन दैट इज कैप्चर्ड इन द कोस्टल इकोसिस्टम और अंडर द ओशंस, ठीक है। पेट्रोलियम ब्लैक हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर नो, नथिंग टू डू। सो ब्लू कार्बन, ब्लू
कार्बन, ब्लू ओशन, ब्लू इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 20th क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू सॉल्व यू, ठीक है। अगर मैं होता तो इसको स्किप कर देता। इसका क्या है कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। कह रहा है इसमें से कौन सा है जो सरफेस पे सर्वाइव कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली विदाउट सॉइल। मशरूम कर सकता है, मशरूम नहीं कर सकता। क्यों? देखो मशरूम जो है ना, जो मशरूम जो है फंगस है, इट्स अ फंजाई। मशरूम इज़ अ फंजाई, और उसके लिए अगर वो फंजाई है तो रिक्वायर ऑर्गेनिक मैटर, इट रिक्वायर ऑर्गेनिक मैटर टू ग्रो। क्या ऑर्गेनिक मैटर रहता है? डिकम्पोज, जैसे वुड है, वुड डिकम्पोज अगर हो गई, ठीक है, तो उस पर वो मतलब मशरूम उगना शुरू कर देगा। तो वहाँ डिकम्पोज मैटर चाहिए, तो मतलब सॉइल चाहिए वहाँ पे, तो मशरूम तो नहीं होगा। तो 4 वाले को अगर आप काट लो तो 50-50 हो जाएगा। फिर आपको अटेम्प्ट ही करना है ये क्वेश्चन। तो दूसरा वाला तो ठीक ही इसमें दिखा रहा है कि दूसरा वाला ठीक है, और पहला वाला तो कटेगा। तो तीसरा अगर आपको पता है मोसिस का तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। लेकिन इसका जो आंसर है वो 2 और 3 है। अब एक बात यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से जो बात कहने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, अगर नहीं किया है अब तक, और वीडियो पसंद आई है तो। दूसरी बात यह है कि मैंने बोला कि इफ़ यू आर एबल टू कैंसिल आउट इवन वन ऑप्शन देन प्लीज़ मार्क दैट क्वेश्चन। छोड़ के नहीं आना है। वाई आई एम सेइंग इट, सी इट इज़ सिंपल प्रोबेबिलिटी, सिंपल मैथ्स। अगर मान लो ऐसे 18 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एक ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिया एंड यू आर कन्फ्यूज बिटवीन 3 ऑप्शंस in each of the 18 questions. So what is the probability of marking wrong? Probability of marking wrong 2/3, क्योंकि एक तो उसमें से ठीक ही है, उन 2 ऑप्शन में से 2/3, तो 2/3 ऑफ 18, 12 क्वेश्चंस आप रॉन्ग मार्क करोगे और 6 क्वेश्चंस आप सही मार्क करोगे। ये प्रोबेबिलिटी है मार्क करने की एज पर द प्योर मैथ्स। अगर आपने 12 क्वेश्चन गलत कर दिए तो नेगेटिव में कितने क्वेश्चन जाएंगे? 1/3 इज अ नेगेटिव मार्किंग। 4 क्वेश्चंस आपके कट जाएंगे। रिड्यूस 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, 2 क्वेश्चंस नेट पॉजिटिव, 4 मार्क्स प्योर पॉजिटिव। और 50-50 है तो बहुत अच्छी बात ही है। फिर तो 18 क्वेश्चन हैं आपके, 9 क्वेश्चन सही मार्क करोगे और 9 इनकरेक्ट मार्क करोगे, ठीक है। तो 9 के बजे से कितने कटेंगे? 3 कटेंगे, तो 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स। इवन इफ यू आर एबल टू मार्क even one of the statement incorrect, if you can eradicate even one statement, please mark those questions, ठीक है। छोड़ के नहीं आने ऐसे क्वेश्चन। और लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को प्लीज़। एक चीज़ ये कि प्लीज़ कमेंट, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट हाउ वॉज दिस वीडियो वॉज एंड what are the changes if any you want me to make, then I am ready to make those changes also if they are convenient and if they are practical I would do that। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो अगेन आई विल से गो ऑन द टेलीग्राम, सर्च Sarma_Abhishek_98, यू कैन DM me your queries there। एंड जैसे मैंने बोला था कि वो शायरी जो थी ना, तो वो शायरी जो उसकी असली शायरी है वो ये है कि वसीम बरेलवी साहब की शायरी है वो शायरी है कि जो आ गए हो तुम तो कुछ चांदनी सी बातें हों, वैसे भी कहाँ जमी पर चांद रोज़ रोज़ उतरता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल से 8:30 बजे आप लोगों को वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज थोड़ा लेट हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।